السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے آپ لوگ بخوبی بہت ساری چیز دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے اور کبھی کبھی بہت زیادہ کشمکش کے شکار بھی ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے دین کی باتیں کرتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، یہی حق پر ہے، اور اس کی یاد میں وہ سب کی تذلیل توہین کرتا چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے جو بات کرنے والا ہوں وہ اسی حوالے سے بات کرنے والا ہوں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے بھی یہ ویڈیوز اور یہ چیزیں آپ لوگوں بھی نہیں دیکھی ہوں گی کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور مرزا علی، ٹھیک ہے نا، ان کے درمیان میں جو بھی جھگڑے ہیں یا جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ بہت غلط ہو رہا۔ تو آئے یہ کہ یہ دونوں میں سے حق پر کون ہے، صحیح کون ہے؟ تو یہ میری بات جو ہے، آج کی جو میری بات ہوگی وہ جو مفتی طارق مسعود صاحب سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی سنیں، جو مرزا علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی سنیں، یا جو ان دونوں سے تو محبت نہیں رکھتے لیکن دونوں کی باتیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خاص و عام ہو، تو تیسرے طبقے کے لوگ ہیں جو عام ہیں وہ لوگ بھی سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آج آپ لوگوں سے جو باتیں عرض کرنی ہو، باتیں یہ کہ دیکھیے، آیا یہ کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ آیا یہ کہ حق پر وہ ہے مرزا علی انجینئر، یہ حق پر ہے، یا پھر مفتی طارق مسعود صاحب یہ حق پر ہے؟ تو دیکھیے بات سمجھ لے، سب سے پہلی بات سمجھ لے کہ دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو قرآن اور سنت کو پہلے سمجھے ہے، پہلے 25 سال 10 سال 12 سال اس میں وقت بتائے ہیں، لگائے ہیں، مار کھائے ہیں، دھکے کھائے ہیں، عربی کی ایک ایک گرامر کو پڑھائی کیے ہیں، مدرسے میں جا کر کے انہوں نے رات دن کو ایک کیا ہے، اس کے بعد یہ علم کو حاصل کیا ہے۔ کون؟ مفتی طارق مسعود صاحب۔ تو یہ مدرسے میں گئے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے قرآن و سنت کو جاننے والے ان سے علم حاصل کیے، عربی کی گرامر کو سمجھے جانے ہیں، بعد میں عرصہ دراز تک اس پر رہے ہیں، اس فیلڈ میں رہے ہیں، بعد میں جا کر کے یہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا شروع کیے ہیں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرف ان کی زندگی کی یہ پوری زندگی ان کے مدرسے سے ہی ہے، پوری زندگی ان کے پڑھنے پڑھانے میں ہی گزر رہی ہے، سیکھنے سکھانے میں ہی گزر رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کا قرآن و حدیث پہ ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف مرزا علی انجینئر ہے، وہ ہے جو کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھے، جس کو الف کا باپ پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کے استادوں کا پتہ نہیں ہے، کس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اس مدرسے کا پتہ نہیں ہے۔ ایک طرف ایسے یہ ان کی زندگی ہے کہ بھائی ان کے استاد کون ہے، ان سے پوچھا گیا استاد کون ہے تو بتاتے نہیں، اللہ میرا استاد میرے نبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا اسی طریقے سے کون سے مدرسے پڑھا گیا تو مدرسہ کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کے استادوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک طرف وہ ہے جس کے استاد کا پتہ نہیں ہے، جو قرآن حدیث کہاں سے علم حاصل کی، کہاں سے پڑھائی کی، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے عربی گرامر کیا ہوتے ہیں، قرآن کہاں سے پڑھے، یہ ساری چیزیں جتنے بھی اسلامک لائن کے اعتبار سے ان کی زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ان کے استاد کون، ان کے پڑھانے والے کون ہیں۔ ایک طرف وہ ہے، تو آپ اب عوام کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کس کی باتیں ماننی ہے، اس شخصیت کی باتیں ماننی، اس انسان کی باتیں ماننی ہے کہ جس کی زندگی پڑھنے پڑھانی ہے، قرآن و سنت اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہیں پہ ان کا اٹھنا بچھونا ہے۔ اور ایک طرف وہ جس کے مدرسے کا پتہ ہو، کون سے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہو، نہ ان کے استادوں کا پتہ ہو کہ کس کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا ہو۔ تو آپ دونوں کو خود عوام کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس کی بات ماننا ہے، اس کی بات ماننا ہے یا ان کی بات ماننا ہے۔ تو اگر جس کی بات آپ مانیں گے آپ کے حشر بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی بات مانتے ہیں جو کہ پوری زندگی ان کے قرآن و سنت یعنی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے گزری ہے، اگر آپ اس کی بات مانتے ہیں تو گویا کہ آپ پرفیکٹ ہے۔ اور اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں جس کی زندگی قرآن و سنت میں نہیں ہے، یعنی نہ جس کے استاد کا پتہ ہو نہ مدرسے کا پتہ ہو، اس کی بات آپ مانتے ہیں، اس کی باتوں کو مان کر کے آپ زندگی گزارنا، شریعت پر چلنا شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کے آخرت میں بھی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک ایسا بندہ اٹھ کر کے آیا جس کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ دین کی باتیں کرنے چلا، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ
लोग आवाम को छोड़ करके, यानी उलमा किराम को छोड़ करके, दीन इस्लाम को जानने वालों को छोड़ करके जाहिलों की पैरवी करने लगेंगे। तो इनका उस्ताद का पता नहीं, मदरसे का पता नहीं है। अगर आप इनकी पैरवी करते तो गोया कि आप कयामत के अलामात की निशानियों में से आप बन रहे हैं। अगर आप इसकी बात मान रहे हैं और एक तरफ मुफ्तियों की, मौलाना की बात को छोड़ करके जो कुरान सुन्नत बतला रहे हैं उनकी बातों को ना मान करके इनकी बातें मान रहे हैं, तो गोया कि आप कयामत के अलामात जो निशानी है उसकी बात आप मान रहे कि आलिम की बात छोड़ करके एक जाहिल की बात मान रहे हैं, ठीक है ना। तो कयामत की निशानियों में से निशानी है कि जाहिल लोग दीन के मिंबर पर बैठेंगे और कुछ भी बकता रहेगा, अपनी मनमानी करता रहेगा। और मिर्जा अली की ये बात पूरे आम पर, मंजर आम पर मशहूर है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इनकी शान में गुस्ताखी करता है। हजरत सुफियान रजी अल्लाह तआला साहबी रसूल है, इनकी शान में गुस्ताखी करता है, इनकी शान में नाज़िबा कलिमात कहता है। या इसी तरीके से बुजुर्गान दीन जितने भी गुजरे हैं, न मैं वहाबी न मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम किताब, यानी बाबे जितने भी गुजरे, जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, सबकी ये तकजीब करता है, सबको ये झुटलाता है, सारे के शान में ये गुस्ताखियां करता है, नाज़िबा कलिमात कहता है। तो बताइए इनकी नजर में कोई अल्लाह वाले है ही नहीं है, इनकी नजर में कोई बुजुर्ग है ही नहीं है, इनके नजर में कोई वलीउल्लाह है ही नहीं है, इनके नजर में न तो इससे न तो सहाबा महफूज है, इससे न तो ताबीन महफूज है, इससे न तो चार बड़े बड़े इमाम महफूज है, इससे न तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह महफूज है, इससे जितने भी पहले हमारे बुजुर्ग गुजर चुके कोई भी इससे महफूज नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी नाज़िबा कलिमात कहा है, नाज़िबा कलिमात का इनके वीडियोस मौजूद है, ठीक है ना। तो देखिए, और कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि बाद के लोग पहले के लोगों को बुरा भला कहेंगे, ठीक है ना। आने वाले जमाना ऐसे लोग होंगे जो लोग गुजर चुके होंगे, उनकी शान में गुस्ताखियां करेंगे। ये भी कयामत के अलामतों में से अलामत है और निशानी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और वही इनका हाल है मिर्जा अली इंजीनियर का, एक तो जाहिल, ना मदरसे का पता, ना इनको उस्ताद का पता, और ये कुरान और सुन्नत की बात करता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत बातें कर रहा है। एक बात, दूसरी बात यह कि सहाबा कराम, ताबीन, बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी कर रहा, जो कि कयामत की निशानियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद के लोग पहले के लोगों को बुरा भला कहेंगे, जो कि ये सबको बुरा भला कह चुका है, सारे को बुरा भला कह चुका है। तो आपके नजर में दो, एक वो जो जिसकी जिंदगी पूरी कुरान और सुन्नत पर गुजरी है, और एक वो जिसको ना मदरसे का पता ना उनके उस्तादों का पता, ठीक है ना। तो फैसला आपके हाथ में है, आपको किसकी बात को मानना है और किसकी बात को सुन करके उस पर अमल करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया सहाबा कराम भी इससे महफूज नहीं है, बुजुर्गान दीन भी इससे महफूज नहीं है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी इन्होंने गुस्ताखी किया है। और ये जाहिल पाना है, ना इसके उस्ताद का ना मदरसे का पता है। अगर आप इसकी बात मानेंगे तो आपका हश उसी के साथ किया जाएगा, ठीक है ना। उसी के साथ आपका हश होगा जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेंगे, जिसके साथ उसका उठना बैठना होगा, उसी के साथ उसका हश होगा। और एक तरफ वो है जो सहाबा कराम की इज्जत करता है, सहाबा कराम के बारे में बातें करता है, सहाबा कराम की इज्जत के बारे में बातें करता है, बुजुर्गान दीन की इज्जत के बारे में बातें करता है। और एक तरफ वो जो कुरान और सुन्नत को बखूबी समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले हैं, ठीक है ना। एक तरफ वो है और एक तरफ ये है। फैसला आपके हाथ में, आपको किसकी बात मानना है और किसकी बातें नहीं मानना है। तो मैं उम्मीद है नाजरीन आप समझ गए होंगे। तो ये फितनों का जमाना है, ये फितनों का जमाना है, फितनों का दौर है। ऐसे हालात में ईमान की हिफाजत करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे हालात में जबकि फितने का जमाना है, फितने ऐसे आसमानों से बरसेंगे जैसे कि बारिश के कतरे आसमानों से बरसते हैं, और ऐसे ही फितने, यानी हमारे सामने फितने बहुत ज्यादा जोरों शोर पर है, आए दिन कुछ ना कुछ फितने हो गया है। तो देखिए, मिर्जा अली का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बल्कि ये पहले आपकी तारीफ करेगा कि ये फलाना ऐसे ऐसे है, बाद में उसकी गुस्ताखी करेगा। यानी लोगों को कंफ्यूज करता है कि देखो, एक बंदा वो जो इसकी तारीफ भी करता है, फिर बाद में उसकी बुराई भी करता है, तो लोग क्या होता है, ये हक पर है। क्यों? ये उसकी तारीफ भी किया है, ये उसकी तारीफ भी करता है, और उसके बाद उसकी जो गलती होता है उसको भी बतलाता है। तो देखिए, कुरान और सुन्नत को समझना उसी से, कुरान और सुन्नत को हमें उससे समझना है जो कुरान और सुन्नत पे अमल करने वालों और कुरान और सुन्नत के हवाले से उन्होंने बात किया। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो इंजीनियरिंग करता है या जो भी करता है और कुरान सुन्नत की बात करता है, वो अरबी हदीस में जो अरबी अल्फाज होंगे वो कभी पढ़ेंगे नहीं, कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अरबी ग्रामर उसी का नहीं होता, बल्कि बुजुर्गों की किताबों जो उर्दू लिखा हुआ होता है उसी के तर्जुमे पढ़ के और उसी को बुरा भला कह रहा होता है, ठीक है ना। उसी के तर्जुमे पढ़ते हैं, उसी की किताबों से इल्म हासिल करते हैं, और बाद में
सस्ती शोहरत के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए ये उसी के ऊपर भोगना शुरू कर देता है। इससे ऐसे जितने भी लोग हैं उससे बोलिए अरबी में जितने हदीस है वो पढ़ के बताओ, उसका तर्जुमा करो, नहीं कर पाएगा। अरबी का एक वर्ड पता नहीं होगा, अलिफ का बा पता नहीं होगा, और ये लोग दीन के बारे में बातें करने चले। ये सहाबा कराम के ईमान का जायजा लेते कि सहाबा कराम के ईमान कैसा है, जिसको दुनिया के अंदर ही रजी अल्लाह अन्हु का खिताब मिल गया, ये उनके ईमान को पड़कता है। ठीक है ना, हमारा ईमान खुद पता ही नहीं है, और ये उसको जिससे अल्लाह राजी हो चुका है उसके लिए जन्नत की बशारतें मिल चुकी है, उसकी शान में गुस्ताखी करता फिरता है। तो देखिए ऐसे हालात में खुलासे कलाम ये कि ऐसे हालात में फितने बहुत ज्यादा उरूज पर आएंगे। फितने आएंगे तो बस अपने आप को ईमान की हिफाजत करना, ईमान को बचाना है और कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। बनी इसराइल 72 में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। 72 के 72 जहन्नम में जलने वाले होंगे, जहन्नम में जाएंगे। सिर्फ एक ऐसा फिरका होगा जो जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया वो कौन सा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही सिर्फ जन्नत में जाएंगे। ठीक है ना, तो सहाबा के शान में बुरा भला कहने वाले सहाबा के तरीके पर तो चल नहीं सकते हैं। तो सहाबा के तरीके पर वही चलेंगे जो सहाबा की इज्जत की बात करे, जो सहाबा कराम को अपना ईमान का हिस्सा समझे, सहाबा कराम को एहतराम की नजर से देखे, वही हुजूर और सहाबा के तरीके पर चलने वाले होंगे। जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले होंगे वो हरगिज सहाबा के तरीके पर चलने वाले नहीं है। तो फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ वो है जो सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करता है, बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी करता है। एक तरफ वो जो उनकी इज्जत की बात करता है, उनके लिए लड़ता है, सहाबा कराम के लिए लड़ता है, अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है। तो फैसला आपके हाथ में है। अगर आप इनके फॉलोवर्स है और बगैर अंधी तकलीद करे, यानी कुरान करीम में ने कहा वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि किसी की बात बगैर दलील के मत मानो। यानी कोई भी बात जब शरीयत कुरान सुन्नत की बात की जा रही भाई, उससे कुरान सुन्नत की दलील पेश करने के लिए हदीस में है, कुरान में है, नहीं पेश करता तो भाई उसकी बात नहीं मानना है। और अगर वो पेश भी करता है लेकिन उसकी जिंदगी खुद सहाबा कराम के बारे में उन्होंने बुरा भला कहा, तो फिर उसकी बातें हमें नहीं मानना, नहीं सुनना है। अगर हम उसकी बातों को मानना शुरू कर देंगे तो गोया के हम उसकी बात से इत्तिफाक करते कि आप जो सहाबा कराम के बारे में बुरा भला कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप इसी तरह बुजुर्गान दीन की तौहीन करें, इसी तरह सहाबा कराम की तौहीन करें, हम आपके साथ हैं। जब आप उनके साथ रहेंगे तो फिर सहाबा कराम की जो दुश्मन होंगे वो किसके सफ में खड़े होंगे? अबू जहल के सफ में खड़े होंगे, उतबा के, शेबा के, बड़े बड़े वक्त फिरौन के, अल्लाह के दुश्मनों के साथ खड़े होंगे। तो आपका भी हश उनके साथ होगा, फिर आपका नमाज, रोजा, हज, ज़कात कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए सहाबा कराम हमारे ईमान का हिस्सा है। जो सहाबा कराम के बारे में बुरा भला कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारी दोस्ती नहीं करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि नाज़रीन आप समझे होंगे। जो जिससे भी मोहब्बत करने वाले, बस ये फितने का जमाना है, हमें कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना है और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना है। अगर हम बुजुर्गों की शान में कुछ अच्छे अल्फाज नहीं कह सकते तो उनकी शान में हमें गुस्ताखी भी नहीं करनी है। क्यों अपने ईमान का खराब करना है? जो अपने ईमान का सौदा करना है वो उनके अमाल उनके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ। अगर जो भी कुछ अच्छा किए होंगे तो उनके साथ रहेगा, बुरा किए होंगे वो भी उनके साथ है। हम क्यों अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब करें उनकी शान में गुस्ताखी करके? अब अगर बिलफर्ज वो सही है, हमने उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल दी है और उसके बारे में लोगों को नफरतें डाल दी, तो भाई उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बुजुर्गान दीन के शान में अगर आप अच्छे अल्फाज नहीं कह सकते हैं तो बुरे अल्फाज भी कहने की हरगिज कोशिश न करे और अपने ईमान को खराब मत करे। और ऐसे लोगों से जो सहाबा कराम के, बुजुर्गान दीन के और तबे ताबीन के शान में गुस्ताखी करता है, ऐसे लोगों से परहेज करने की कोशिश करे, बचने की कोशिश करे और अपने ईमान का सौदा हरगिज न करे। क्योंकि जुब्बा कुब्बा और पगड़ी पहन करके लोग शरीयत का तो लिबादा पहने हुआ, लेकिन इस आड़ में लोगों की ईमान को खराब कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।